हम पढ़ेंगे निर्गमन एक्सोडस 34 चैप्टर 35 चैप्टर। थैंक यू अब्बा फादर गॉड, जो वचन आज हम पढ़ रहे पिता परमेश्वर हमारे में आप भर रहे हो, ये वचन निश्चित पिता परमेश्वर हमारे दोस्ती में, हमारे गहराई में, हमारे मनन में बैठा रहेगा, जिसमें से हम कभी भी परमेश्वर पिता कोई भी तरह से खुदा अलग नहीं होंगे। हम धन्यवाद करते हैं, ये वचन हमारे जीवन को बना रहा है, हमारे गहरे गहरे जहन में ये वचन ठहरा हुआ है। थैंक यू आबा फादर गॉड। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, ये आज के वचन हमें समझ आने दे। विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे एक्सोडस 34 चैप्टर फर्स्ट वर्स से। द टेबल्स आर रिन्यूड, द नेम ऑफ द लॉर्ड प्रोक्लेम्ड, मोसेस फेस shineth. First verse, and the Lord said unto Moses, hew thee 2 tables of stone like unto the first, and I will write upon these tables the words that were in the first tables which thou breakest. And be ready in the morning, and come up in the morning unto Mount Sinai, and present thyself there to me in the top of the mount. And no man shall come up with thee, neither let any man be seen throughout all the mount, neither let the flocks nor herds feed before that mount. And he hewed 2 tables of stone like unto the first. And Moses rose up early in the morning, and went up unto Mount Sinai, as the Lord had commanded him, and took in his hand the 2 tables of stone. And the Lord descended in the cloud, and stood with him there, and proclaimed the name of the Lord. And the Lord passed by before him, and proclaimed, the Lord God merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for the thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the 3rd and to the 4th generation. And Moses made haste, and bowed his head toward the earth, and worshipped. And he said, if now I have found grace in thy sight, O Lord, let my Lord, I pray thee, go among us, for it is a stiff-necked people, and pardon our iniquity and our sin, and take us for thine inheritance. And he said, behold, I make a covenant before all thy people. I will do marvels, such as have not been done in all the earth, nor in any nation, and all the people among which thou art shall see the work of the Lord, for it is a terrible thing that I will do with thee. Observe that which I command thee this day. Behold, I drive out before thee the Amorite, and the Canaanite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite. Take heed to thyself, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land whither thou goest, lest it be for a snare in the midst of thee. But ye shall destroy their altars, break their images, and cut down their groves, for thou shalt worship no other God, for the Lord, whose name is a jealous God. Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a warring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice, and thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a warring after their gods, and make thy sons go a warring after their gods. Thou shalt make thee no molten gods. The feast of unleavened bread shalt thou keep. 7 days thou shalt
Eat unleavened bread as I commanded thee in the time of the month Abib. For in the month Abib thou comest out from Egypt. All that openeth the matrix is mine, and every firstling among thy cattle, whether ox or sheep, that is male. But the firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb. And if thou redeem him not, then shalt thou break his neck. All the firstborn of thy sons thou shalt redeem, and none shall appear before me empty. 6 days thou shalt work, but on the seventh day thou shalt rest in earing time. And in harvest thou shalt rest, and thou shalt observe the feast of weeks of the first fruits of wheat harvest, and the feast of ingathering at the year's end. Thrice in the year shall all your men children appear before the Lord God, the God of Israel. For I will cast out the nations before thee, and enlarge thy borders. Neither shall any man desire thy land, when thou shalt go up to appear before the Lord thy God thrice in the year. Thou shalt not offer the blood of my sacrifice with leaven, neither shall the sacrifice of the feast of the Passover be left unto the morning. The first of the first fruits of thy land thou shalt bring unto the house of the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk. And the Lord said unto Moses, Write thou these words, for after the tenor of these words I have made a covenant with thee and with Israel. And he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He did neither eat bread nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the 10 commandments. And it came to pass, when Moses came down from Mount Sinai with the two tables of testimony in Moses' hand, when he came down from the mount, that Moses wist not that the skin of his face shone while he talked with him. And when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come nigh him. And Moses called unto them, and Aaron and all the rulers of the congregation returned unto him, and Moses talked with them. And afterward all the children of Israel came nigh, and he gave them in commandment all that the Lord had spoken with him in Mount Sinai. And till Moses had done speaking with them, he put a veil on his face. But when Moses went in before the Lord to speak with him, he took the veil off until he came out. And he came out and spake unto the children of Israel that which he was commanded. And the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses' face shone. And Moses put the veil upon his face again until he went in to speak with him. Chapter 35. The Sabbath. The free gifts for the tabernacle. Bezalel and Aholiab called to the work. First verse से पढ़ेंगे. And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together and said unto them, These are the words which the Lord hath commanded that ye should do them. 6 days shall work be done, but on the seventh day there shall be to you an holy day, a Sabbath of rest to the Lord. Whosoever doeth work therein shall be put to death. Ye shall kindle no fire throughout your habitations upon the Sabbath day. And Moses spake unto all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord commanded, saying, Take ye from among you an
offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it, an offering of the Lord, gold and silver and brass, and blue and purple and scarlet and fine linen and goats' hair, and rams' skins dyed red, and badgers' skins, and shittim wool, and oil for the light, and spices for anointing oil, and for the sweet incense, and onyx stones, and stones to be set for the ephod, and for the breastplate. And every wise hearted among you shall come and make all that the Lord hath commanded: the tabernacle, his tent, and his covering, his thatches, and his bolts, his bars, his pillars, and his sockets, the ark, and the staves thereof, with the mercy seat, and the veil of the covering, the table, and his staves, and all his vessels, and the shewbread, the candlestick also for the light, and his furniture, and his lamps with the oil for the light, and the incense altar, and his staves, and the anointing oil, and the sweet incense, and the hanging for the door at the entering in of the tabernacle, the altar of a burnt offering with his brazen grate, his staves, and all his vessels, the laver and his foot, the hangings of the court, his pillars and their sockets, and the hanging for the door of the court, the pins of the tabernacle, and the pins of the court, and their cords, the clothes of service to do service in the holy place, the holy garments for Aaron, the priest, and the garments of his sons to minister in the priest's office. And all the congregation of the children of Israel departed from the presence of Moses. And they came, every one whose heart stirred him up, and every one whom his spirit made willing. And they brought the Lord's offering to the work of his tabernacle, to the work of the tabernacle of the congregation, and for all his service, and for the holy garments. And they came, both men and women, as many as were willing hearted, and brought bracelets, and earrings, and rings, and tablets, all jewels of gold. And every man that offered an offering of gold unto the Lord. And every man with whom was found blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair, and red skins of rams, and badgers' skins, brought them. Every one that did offer an offering of silver and brass brought the Lord's offering, and every man with whom was found shittim wood for any work of the service brought it. And all the women that were wise hearted did spin with their hands, and brought that which they had spun, both of blue, and of purple, and of scarlet, and of fine linen. And all the women whose heart stirred them up in wisdom spun goat's hair. And the rulers brought onyx stones, and stones to be set for the ephod, and for the breastplate, and spice, and oil for the light, and for the anointing oil, for the sweet incense. The children of Israel brought a willing offering unto the Lord, every man and woman whose heart made them willing to bring for all manner of work, which the Lord had commanded to be made by the hand of Moses. The Moses said unto the children of Israel, See, the Lord hath called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and he hath filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship.
and to devise curious works, to work in gold and in silver and in brass and in the cutting of stones to set them, and in carving of wood, to make any manner of cunning work. And he hath put in his heart that he may teach both he and Aholiab the son of Ahisamach of the tribe of Dan. Then hath he filled with wisdom of heart to work all manner of work of the engraver and of the cunning workman and of the embroiderer in blue and in purple, in scarlet and in fine linen, and of the weaver, even of them that do any work, and of those that devise cunning work. थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय 35 अध्याय हिंदी PSI बाइबल में से। पत्थर की नई तख्तियाँ, पहले वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियाँ पढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनाई पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियाँ पढ़ी, और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियाँ लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनाई पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुक कर दंडवत किया, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। वाचा का दोहराया जाना। 10 वचन से आगे उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्यों को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी आशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं,
क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए। और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए। तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर न बना लेना। अखमीरी रोटी का पर्व बांधना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र से अबीब महीने में निकल आया। हर एक पहलौठा मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना, तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठे हो वे सब मेरे ही हैं। गदही के पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना न चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। और तू सप्ताहों का पर्व मानना, तो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मानना। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इसराइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा। Thank you, Jesus. पच्चीस वचन से आगे, मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित न चढ़ाना, और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में न पकाना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। मूसा का पहाड़ से उतरना। 29 वचन से आगे, जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनाई पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया, और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया, और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए, और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सिनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तब वह उस ओढ़ने को निकलते समय
तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे तो कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने के को भीतर न जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। शब्द को मानना। 35 अध्याय पहले वचन से। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये है, 6 दिन तो काम काज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई काम काज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। पवित्र तंबू के लिए भेंट। 4 वचन से आगे। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलैमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। निवास स्थान की विभिन्न वस्तुएं। 10 वचन से आगे। तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, अर्थात तंबू और आवरण समेत निवास और उसकी घुंडी, तख्ते, बिंडे, खंबे और कुर्सियां, फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों आदि सारी सामान समेत होम वेदी, पाए समेत हौदी, खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र। लोगों द्वारा भेंट लाना। 20 वचन से आगे। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे वे सब उनको ले आए, और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें या सुइसों की खालें थी वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए, और जिस जिस के पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले और बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था
उन्होंने बकरी के बाल भी काते और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने को आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। मिलाप वाले तंबू के लिए कारीगर। 30 वचन से आगे, तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे नक्काशी करने और गढ़ने वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काढ़ने और बुनने वाले हो, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। रिबांति खम्ब ओसी नरबहंसरा। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। टू ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। Acts 16 chapter 11 verse से 18 verse, Psalm 5 chapter 6 chapter। हम पढ़ेंगे 2 years Bible reading plan, Acts 16 chapter 11 to 18 verse, Psalms 5 chapter 6 chapter। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 11 वचन से 18 वचन, भजन संहिता 5-6 अध्याय। ये 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हमने फैसला लिया है कि अकेले में, व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में इसे पढ़ेंगे, ताकि ये वचन हमारे अंदर काम करे। परमेश्वर का आत्मा हम में सुधार ला सके वचनों को दिखाकर, और ये होने के लिए हमने व्यक्तिगत समय में पढ़ने का फैसला किया है। निश्चित परमेश्वर का आत्मा जैसा चलाता है वैसे ही हम सब इसे पढ़ना है। जैसे आपको प्रेरणा है वैसे आप इस 2 साल के बाइबल रीडिंग को पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सिखाया जाना चाहिए, और परमेश्वर के आत्मा का निश्चित हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस, ईश्वरीय रचना में लेकर आए। इन वचनों के आधार से हमें फिट एंड फिक्स करे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।